اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مہنگائی سے بے حال عوام پر 170 ارب روپے کا مزید بوجھ ڈال دیا گیا۔ حکومت کا جنرل سیلز ٹیکس 17% سے بڑھا کر 18% کر جیلی، نوڈلز، کھلونے، چاکلیٹ، ٹافیاں مہنگی ہو جائیں گی۔ صابن، شیمپو، ٹوتھ پیسٹ، شیونگ کریم، میک اپ کا سامان، کریم، لوشن، ہیئر کلر، پرفیوم اور برانڈڈ عطر بھی سیلز ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ مشروبات، کولڈ ڈرنکس، جوسیز پر ٹیکس میں اضافہ تجویز کیا گیا۔ لگژری اشیاء پر 25% سیل ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ ہوا۔ موبائل فون، ٹیبلیٹس، لیپ ٹاپ سمیت گیجٹس بھی مہنگے ہوں گے۔ ٹی وی، ایل ای ڈیز، ایل سی ڈیز، فریج، واشنگ مشین، جوسر بلینڈرز اور فوڈ فیکٹریز سمیت الیکٹرانکس آئٹم بھی مہنگے ہوں گے۔ شادی ہالز کی تقریبات کے بلوں پر 10% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ سگریٹ اور مشروبات کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں بھی اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ادویات، پیٹرولیم، سپورٹس کی ایل سی کھولنے کا بھی باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر حکومت کے 170 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس اقدامات کو بزنس کمیونٹی نے مسترد کر دیا۔ سیلز ٹیکس 17 سے بڑھا کر 18% کرنے کے فیصلے پر بزنس کمیونٹی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اشرف خان رپورٹ کریں گے۔ آئی ایم ایف کی شرط پر عمل درآمد کے لیے 170 ارب روپے کا منی بجٹ آ گیا۔ صنعت کاروں نے ٹیکسوں کے اقدامات کے سبب مہنگائی کا نیا طوفان کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ حکومت نے سیل ٹیکس کی شرح 17 سے بڑھا کر 18% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر ایف پی سی سے عرفان اقبال شیخ کا کہنا ہے کہ سیل ٹیکس کی شرح 1% بڑھنے سے عوام پر 50 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ آ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ منی بجٹ جو ہے نا یہ انفلیشن کا ایک اور نیا ایک لہر لے کے آئے گا اور اس ملک میں جو غریب آدمی ہے اس کے لیے اور مشکل ہو جائے گا، بزنس مینوں کے لیے کاروبار کرنا اور مشکل ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ منی بجٹ میں پرچائش اشیاء پر ڈیوٹی کی شرح 25% تک اضافہ بھی شامل ہے اور لگژری آئٹم پر ٹیکس لگا کر 60 ارب روپے کی آمدنی کا امکان ہے۔ چیئرمین نیشنل بزنس گروپ میاں زاہد حسین کے مطابق ٹیکس کے نئے اقدامات سے مہنگائی 35% سے بھی تجاوز کر جائے گی اور اس کا بوجھ عوام پر ہی پڑے گا۔ اس میں ہمارا خیال یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ تقریباً 35% کو ٹچ کرے گی اور اس میں یقیناً لوگوں کے لیے بہت بری سچویشن ہوگی اور غریب آدمی کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہماری جو درمیانہ طبقہ ہے ان کے لیے بھی ایک بڑی بری سچویشن ہوگی کہ جو اپنا کاروبار کرتے ہیں یا جن کی سفید پوش ہیں یا درمیانی قسم کی انکم ہے تو ان کے لیے بھی بہت بڑی یہ پرابلم ہوگی کہ وہ کیسے سسٹین کرتے ہیں۔ مہنگائی کے ستائے شہری حکومت کی جانب سے منی بجٹ اور بجلی یا گیس کی قیمتوں میں مزید اضافے پر برہم ہیں۔ کہتے ہیں مشکل فیصلے حکومت نہیں کرتی، صرف عوام پر مہنگائی کا بم مار گرایا جاتا ہے۔ یہ منی بجٹ نہیں ہے، ہم غریبوں کے لیے دشمنی ہے۔ بغیر موت مارو، بغیر دیے ہم مریں گے۔ غریب برداشت کرے گا مہنگائی کو؟ غریب آدمی تو تازی دیہڑی کر رہا ہے، اس میں نہیں پوری ہو رہی غریب آدمی کی، وہ کہاں جائے گا؟ آج کے دور میں آٹے کا ریٹ کہاں چلا گیا ہے، گھی کا ریٹ ہے، چینی کا ریٹ ہے۔ آدمی جو ہے نا اپنی حق حلال روزی سے کیسے افورڈ کر پائے گا؟ اب یہ تو ہماری گورنمنٹ کو ہی سوچنا چاہیے۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے مقامی سطح پر تیار کچھ پرچائش اشیاء پر بھی جی ایس ٹی بڑھانے کی تجویز ہے۔ آئی ایم ایف کی مذمت کے باعث حکومت فلڈ لیوی کا نفاذ ملتوی کر دیا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ صدر الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن نے الیکٹرانک مصنوعات پر ٹیکسز میں اضافے کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہمارے نمائندے کاوش میمن سے۔ جی بالکل، حکومت نے منی بجٹ پیش کر دیا ہے اور 170 ارب کے جو ٹیکسز ہیں وہ عوام پر اب لگائے جائیں گے۔ اسی سلسلے میں جو الیکٹرانک کاروبار سے وابستہ افراد ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے، کیونکہ حکومت نے جو الیکٹرانک مصنوعات ہیں ان پر بھی ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا اور جو درآمدی موبائل $500 سے زائد کے ہوں گے ان پر 25% ٹیکس لگایا جائے گا۔ تو کاروبار کتنا متاثر ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں الیکٹرانک ڈیلرز کے پریزیڈنٹ رضوان عرفان۔ سر، کیا کہیں گے فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، فیصلہ تو یہ ہے سراسر عوام کے خلاف ہی آتا ہے اور عوامی کو جو ہے اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں حکومت نے اپنی شاہ خرچیاں پوری کرنے کے لیے جو ٹیکس بڑھا رہی ہے، اپنی جو ہے وہ خرچے کم نہیں کر رہے، اپنے جو ہے حضوریات کی چیزیں ہیں وہ کم نہیں کر رہے، صرف عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں موبائل جو ہے وہ ایک عام آدمی خریدتا ہے اور دنیا میں جو ہے موبائل سے کاروبار ہوتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، وہ آئی ٹی کے سیکٹر کا شمار ہوتا ہے۔ وہ اس پہ تو آپ کو ڈیوٹیاں کم کرنی چاہیے تھی، نہ کہ آپ نے اس پہ ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں۔ عام آدمی جو ہے بیچارہ اس سے جو ہے اس کو پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگا۔ بڑے موبائل تو بڑا آدمی خرید سکتا ہے لیکن چھوٹا آدمی جو ہے وہ موبائل اتنے خرید نہیں سکے گا۔ اور یہ جو ہے یہ گورنمنٹ جو سیکٹر آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے آپ اسی پہ ٹیکس لگا رہے ہیں،
ये सरासर नाजायज़ है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि कोई ऐसे काम करने पहले कोई मशावरत की जाती है। आपने सिर्फ आवाम पे जो है उसके बोझ डाल रहे हैं और गवर्नमेंट को कोई इससे कोई सरोकार नहीं है। बेरोज़गारी होगी, लोग एहतजाज पे आएंगे, तो फिर जो है गवर्नमेंट को भी इसको देखना पड़ेगा कि किस तरह जो है इसका सब्स्टिट्यूट निकालें। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग सड़कों पे आएँ तो फिर हुकूमत फिर क्या करेगी, मेरी समझ से वालदार है। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट रिजवान इरफान का ये कहना था कि हुकूमत बेजा टैक्सेस लगाना बंद करें, वगरना फिर ताज़ एहतजाज पर मजबूर होंगे। जी। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची की जानिब से प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शोबा ख़वातीन मुस्लिम व्यूमन लीग की जानिब से एहतजाज महंगाई के खिलाफ किया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मज़ीद तफसीलात नमरा रियासत की रिपोर्ट में। हाकिम माला माल है, भूखा मेरा लाल है, भाषण नहीं राशन दो के नारे। मुल्क में जारी महंगाई की नई लहर के खिलाफ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सरापा एहतजाज बन गई। प्रेस क्लब पर जारी मुजाहिरे में कारकुनान प्ले कार्ड्स और बैनर्स के साथ घर के बर्तन भी उठा लाए। मुजाहिरीन का कहना था कि अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान पर पहुँच गयी। 2 वक्त का खाना भी हमारी दस्तरस से बाहर हो गया। ऐसे में बच्चों को खिलाएं या पढ़ाएं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पूरी ही नहीं हो रही, खाना ही नहीं मिल रहा है सही तरीके का और चीज़ें नहीं मिल रही हैं। बाज़ार में जाओ तो रोज़ाना कीमत बढ़ी हुई होती है। आलू, प्याज, टमाटर जैसी चीज़ें, केले, ये हम खरीद ही नहीं पा रहे हैं लोग, और बच्चे इस वक्त भूखे मर रहे हैं। हमारा किचन किस तरह से चलेगा जब इस तरह की बढ़ती महंगाई होगी? हमारे बच्चे किस तरह से स्कूल में तालीम हासिल कर सकेंगे? जब घरों में चूल्हे ही नहीं जलेंगे, बच्चों को हम लोग किस तरह से तालीम दिलवा सकेंगे? अब तो हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए कि जो औरतें, खवातीन यहाँ निकली हैं, अपने घरों के चूल्हे बंद करके निकली हैं और वैसे ही बंद पड़े रहते हैं, आटे के लिए बैठे रहते हैं, तेल, घी, चीनी, हर राशन की एक एक चीज़ के लिए तरसते हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। खुदारा रहम कीजिए हम पर। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मीडिया सेक्रेटरी सरदार सलीम इलियास का कहना था कि हुकूमत को अपने खर्चात को कम करके आम आवाम के बारे में सोचना चाहिए। महंगाई की रोकथाम के लिए इकदाम करके आवाम को रिलीफ देना होगा, और उसके लिए सबसे पहले जो हुकूमत को काम करना होगा वो अपने अखराजात, अपनी शाह खर्चियों को कम करना होगा। काबीना की तादाद और ये गैर ज़रूरी जो मुल्कों के दौरों का चक्कर लगता जा रहा है, इसको कम करें और जो आवाम की बेसिक नीड्स हैं उसके ऊपर काम ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। मुजाहिरे में मौजूद खवातीन ने हुक्मरानों को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करते हुए आवाम के लिए काम करने का मुतालबा किया। कैमरामैन शकील के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। FPCCI ने गैस की कीमत में 34% तक इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सीनियर नायब सदर FPCCI सलमान चावला ने कहा कि पहले ही इंडस्ट्री खाम माल ना मिलने और लागत पर मुश्किलात का शिकार है। गैस की कीमत बढ़ने और मज़ीद टैक्सों का बोझ डालने से इंडस्ट्री बैठ जाएगी। डॉलर की बढ़ती कीमत और माशी बहरान से परेशान ताजिर गैस की कीमत में 34% तक इजाफे की खबरों पर फट पड़े। सीनियर नायब सदर FPCCI सलमान चावला ने कहा कि गैस की कीमत में इजाफा होने से शदीद मनफी असरात मुरतब होंगे। पहले ही इंडस्ट्री खाम माल न मिलने और पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से शदीद मुश्किलात में घिरी हुई है, और अब गैस की कीमत बढ़ने से हर शोबे की पैदावारी लागत और बढ़ जाएगी। तो तबाही मचेगी। इस वक्त इंडस्ट्री ऑलरेडी डूबने के किनारे पे है, और मजीद जो गैस के प्राइसेस बढ़ने से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, हमारा जो कॉम्पिटिटर्स हैं, हम ऑर्डर्स पूरे नहीं कर सकेंगे, और इतने प्राइसेस बढ़ने के बाद कोई भी हमारे जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं उस पे जो रेट्स हैं उसको हम देखते हुए हमारा मुकाबला ही नहीं रहेगा, और बहुत ही बुरा असर आएगा इस वक्त। सीनियर नायब सदर FPCCI ने कहा कि हुकूमत मजीद टैक्सों का बोझ भी डालने जा रही है। 170 अरब रुपए से जायद के टैक्स का बोझ मौजूदा हालात में बर्दाश्त ही नहीं हो सकेगा। देखिए जी, इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, और इंडस्ट्री को आप छोड़ें, लोकल जो मार्केट है वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जो स्टील की प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो पाकिस्तान की एक तरह से अब नई आने वाले ज़माने में बैकबोन होनी चाहिए थी, वो भी अब तबाही के दहाने पे। सारे जो हमारे मेंबर्स हैं कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता, उन्होंने मना कर दिया कि हम स्टील नहीं खरीद सकते। सीनियर नायब सदर FPCCI ने कहा कि इंडस्ट्री का इनपुट गैस है, और गैस की कीमत 34% बढ़ने से इंडस्ट्री की पैदावारी लागत 10 से 15% बढ़ जाएगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। डेप्यूटी कमिश्नर मलीर इरफान इस्लाम मेरवानी की हिदायत पर तालुका शाह मरीद गुडाब टाउन में बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में 150 एकड़ से जायद सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। DC मलीर के मुताबिक सरकारी ज़मीन पर जाली गोट कायम किए गए थे, जिनमें यार मोहम्मद खास खेली गोट, फैज़ मोहम्मद गोट और उर्स बरफत गोट शामिल है। ऑपरेशन के दौरान तमाम गैर कानूनी तजावुज़ात को बिलडोज़र के जरिए मस्मार किया गया। कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन की सरबराही AC शाह मुरीद
अमीर अली मीरवानी ने की, जबकि एंटी इंक्रोचमेंट टीम और पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। जिला कुरंगी के अवाम के लिए सिंध हुकूमत का एक और तोहफा। कुरंगी कॉजवे पर बुर्ज बनाने के लिए अखबारात में टेंडर का इजरा कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने अपने वीडियो बयान में कहा कि बारिशों में कुरंगी कॉजवे अक्सर ज़ेरे आब आ जाता है, जिसे कॉजवे को बंद करना पड़ता है और शहरी मुश्किलात का शिकार होते हैं। ब्रिज बनने से कुरंगी इब्राहिम हैदरी इंडस्ट्रियल एरिया, इलाल कॉलोनी, अवामी कॉलोनी, कोस्ट गार्ड, लांढी समेत दीगर इलाकों की आवाम की सफरी मुश्किलात ख़त्म होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वादों को वफा करने पर बिलीव करती है, वादों की तकमील में बिलीव करती है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, वज़ीर आला सिंध ने ये वादा किया था कि हर बारिश में जो कुरंगी कॉजवे पानी के ज़ेरे आब आ जाता है उसको, उस मामले को रिजॉल्व करने के लिए और एक बेहतरीन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन कुरंगी की आवाम को, इब्राहिम हैदरी की आवाम को प्रोवाइड करने के लिए एक नया ब्रिज तामीर किया जाएगा कुरंगी नदी के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है बताते हुए कि वो ऐलान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया था, उस ऐलान को वफा करने की इब्तदा हो चुकी है और आज अखबार में उस टेंडर को फ्लोट कर दिया गया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर काम कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत देरीना मसला कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो लोग जाते हैं उनका, कुरंगी की आवाम का, इब्राहिम हैदरी की आवाम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हल करने जा रही है। जी भुट्टो। केएमसी के सिटी वार्डन्स 14 सालों से अपग्रेडेशन जैसे बुनियादी हक से महरूम है, जबकि वज़ीर आला ने भी सिटी वार्डन्स की अपग्रेडेशन की हिदायत की थी। बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा सिटी वार्डन महरूमियों का गढ़ बन गया, जहां वज़ीर आला सिंध की हिदायत के बावजूद 14 बरस से प्रमोशन और अपग्रेडेशन से महरूम हैं। मसला ये है कि 14 साल से एक ही पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। आजकल की महंगाई दौर, मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों की हमारे सामने अपग्रेडेशन हो गई, लेकिन हमारी नहीं हुई अब तक और ना कैसा कोई इकदाम हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारी भी अपग्रेडेशन हो ताकि इस आजकल के जो दौर है, हालात है, महंगाई है, उस सब से हम अपने घर वालों का सही तरह से पेट पाल सके। महकमा सिटी वार्डन का कयाम 2007 में अमल में लाया गया। मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए। 2009 में सिंध हुकूमत के अहकामात की रोशनी में मुस्तकिल मुलाजमीन का दर्जा दिया गया, मगर बदकिस्मती से इस इदारे के कयाम से ताहाल इन मुलाजमीन की अपग्रेडेशन नहीं की जा सकी, जिसका शिकवा हर सिटी वार्डन की जुबान पर है। इस तरह महंगाई चल रही है तो जब अपग्रेडेशन होगी तो इंशाल्लाह तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, तो जो है ना हमारी कारकर्दगी पे भी तो इंशाल्लाह जो है ना और अच्छी से मज़ीद बेहतर से बेहतर होगी। एहसास महरूमी अभी तक है हमें, और डिपार्टमेंट की 4 से 5 दफ़ा अपग्रेडेशन हुई हैं और भी केएमसी के 28,000 मुलाजमीन हैं, उनके कई डिपार्टमेंट हैं, उन लोगों की अपग्रेडेशन हुई है, लेकिन बस हमें बड़ा अफसोस होता है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा सिटी वार्डन के मुलाजिमीन की अपग्रेडेशन के लिए मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने महकमा लोकल गवर्नमेंट को मरासला भी रवाना किया था, जो मंजूरी का मुंतज़िर है। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, 321। नाजरीन, भारतीय हुकूमत की बेहिसी अपने ही शहरियों को भूल गई। लांढी जेल में 2018 से कैद 675 इंडियन माहीगीर मोदी सरकार की क्लियरेंस के मुंतजर है। समर अब्बास की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। सरकार अपने ही शहरियों से बेगानी हो गई। कराची की लांडी जेल में 675 इंडियन माहीगीर कैद हैं। सुपरिटेंडेंट जेल सैयद अरशद हुसैन के मुताबिक 2018 से माहीगीर कैद हैं, ताहम उनकी रिहाई न होने की बड़ी वजह भारतीय हुकूमत है। देखिए, मेरे पास तो 2018 से कैदी है इंडियन फिशरमैन, जो अभी हुकूमत रास्ता नहीं कर रही, नहीं, जो अभी इंतजार में है कि कब हमारी जो है वो वापसी होगी, तो अभी तक वहाँ से कोई क्लियरेंस नहीं मिली है। जेल हुकाम के मुताबिक 650 कैदियों की कौंसलर रसाई हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय हुकूमत की जानिब से क्लियरेंस में ताखीर है। 650 के करीब जो लोग हैं उनकी कौंसलर एक्सेस हो गई है। अब इंतज़ार है उनकी डिपार्टेशन का, तो वो अभी तक उनका मसला हल नहीं हुआ है वहाँ से जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो कब जाएंगे और कब उनको वो क्लियर करेंगे, तो उसके बाद ही वो यहाँ से रवाना हो। जेल हुकाम के मुताबिक इंडियन माहीगीरों के हवाले से बार बार भारतीय हुकूमत को खत लिख चुके हैं, लेकिन रवायती बेहिसी के बायस माहीगीर कैद में मौजूद हैं। समर अब्बास, सिटी 21। गुलशन इकबाल में डीएमसी शर्की के तहत 3 रोज़ा फ्लावर शो का आगाज़ हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ्लावर शो का इफ्तिताह वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने किया।
महकती बहार के रंग रंग बरंगे फूलों के संग डीएमसी ईस्ट के तहत 3 रोजा फूलों की नुमाइश शुरू हो गई। वजीर बल्दियात ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान और एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी सैयद शकील अहमद के हमरा नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नासिर शाह ने हिदायत की कि हर बच्चे को एक गमला दिया जाए जिस पर बच्चे का नाम दर्ज किया जाए। शकील भाई से कहा है कि हर गमले पे हर स्टूडेंट का नाम हो, हर स्टूडेंट अपने नाम से वो इसकी आप बाद में आबियारी भी करते रहें ताकि ये खूबसूरती जो है ये ज्यादा बढ़े। फूलों जैसे बच्चे हों, घरेलू खवातीन या फिर बुजुर्ग, सभी फुलवारी और फुवारे से महफूज हुए। हमें बहुत मजा आया और मैं डीएम्स को इसके लिए थैंक यू कहूँगा कि ये सब सेटअप करने के लिए ये बहुत अच्छा सेटअप था। जी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे ना, बहुत लाइटें ये अब रात हुई है ना, फेरी लाइट जल रही है तो और खूबसूरत लग रही है। इस तरह की तकारीब होती हैं तो इससे और चार चांद लग जाते हैं। फ्लावर शो में शरीक शहरियों ने इवेंट को खुशाइंद करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी ऐसा इवेंट होने चाहिए। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने मुल्क में पहली डिजिटल खाना और मरदमशुमारी के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक डिजिटल मरदमशुमारी के लिए तमाम इमारतों की जियो टैगिंग की जाएगी। सूबे के 30 अजला में 43,838 ब्लॉक बनाए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, सूबाई कमिश्नर शुमारियात, सेक्रेटरी स्कूल तालीम, तमाम कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर शरीक हुए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने बताया कि मुल्क में पहली डिजिटल खाना और मरदमशुमारी 1 मार्च से 1 अप्रैल तक होगी। मुस्तकबिल की तमाम प्लानिंग्स इस डिजिटल मरदमशुमारी के तहत होगी। मरदमशुमारी के लिए ज़िला और तालुका सतह पर कमेटियाँ बनाई गई हैं। कमिश्नर शुमारियात रफ़ीक अहमद बरोड़ो ने बताया कि डिजिटल खाना और मरदमशुमारी में खुदशुमारी का अमल 20 फरवरी से शुरू होगा। सिंध में डिजिटल मरदमशुमारी के लिए 30,000 टैबलेट फराहम कर दिए गए हैं। और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे, इमरान खान ने पीटीआई कराची के सदर बिलाल गुफार को हटा दिया। आफ्ताब सिद्दीकी को नया सदर मुकर्रर कर दिया गया। खुर्रम शेर जमान को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर नामजद कर दिया गया। बिलाल गुफार को पीटीआई की मुआशी टीम का मेंबर मुकर्रर कर दिया गया है। बिल्कुल, इमरान खान ने पीटीआई कराची के सदर बिलाल गफ्फार को ओहदे से हटा दिया है। आफ्ताब सिद्दीकी को नया सदर मुकर्रर किया गया है। खुर्रम शेर जमान को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर नामजद कर दिया। बिलाल गफ्फार को पीटीआई की मुआशी टीम का मेंबर मुकर्रर कर दिया गया है। खबर शामिल करेंगे, मरदमशुमारी होगी, यूसीस भी बढ़ेंगी। सिंध हुकूमत ने एमक्यूएम को यकीन दिला दिया। नासिर शाह की सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर रहनुमाओं के हमरा राबिता कमेटी अरकान से मुलाकात हुई। मुस्तफ़ा कमाल को हल्का बंदियों से मुतल्लिक मामलात अफ़हाम तफ़हीम से हल होने की उम्मीद हो गई। सिंध हुकूमत ने महकमा एंटी करप्शन में अफसरान की उखाड़ पछाड़ शुरू कर दी। महकमा एंटी करप्शन में वकालत की डिग्री ना रखने वाले ऑफिसर नईम अहमद खानजादा को ओहदे से हटाकर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। अब्दुल कादिर जावेद शर को डायरेक्टर तरक्की और मनसूबाबंदी कमिश्नर ऑफिस शहीद बेनज़ीराबाद से तबादला करके डायरेक्टर कानून एंटी करप्शन तैनात कर दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन डॉक्टर जमील अहमद को ओहदे से हटाकर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म मिल गया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन मीरपुर खास जोन इमरान हसन डावज को तबादला करके डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन हैदराबाद जोन लगा दिया गया। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के खैरपुर जिला से ताल्लुक़ रखने वाले मजीद 9 असातिज़ा को ड्यूटी चोर घोस्ट करार दे दिया। घोस्ट असातिज़ा को 23 फरवरी को महकमा स्कूल तालीम सेक्रेटेरिएट में तलब कर लिया गया। महकमा स्कूल तालीम ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। असातिज़ा को डायरेक्टर जनरल HR के रूबरू पेश होने की हिदायत जारी कर दी गई। असातिज़ा में अब्दुल सलाम, अनिला खातून, परवीन, सिकंदर अली और मोहम्मद राशिद शामिल हैं। मुमताज़ ब्रॉडकास्टर ज़िया मोइनुद्दीन की रस्म सोएम उनकी रिहाइशगाह पर अदा की गई। रस्म सोएम में तमाम शुबाहाए ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत करने का कहा कि ज़िया मोइनुद्दीन की कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। ज़िया मोइनुद्दीन एहसास शख्सियत थे। पाकिस्तान के मारूफ TV एंकर, हिदायतकार और मुसन्निफ ज़िया मोइनुद्दीन 92 बरस की उम्र में वफ़ात पा गए थे। ज़िया मोइनुद्दीन कुछ अरसे से अलील थे। ज़िया मोइनुद्दीन का रस्म सोएम उनके रिहाइशगाह पर अदा की गई।
रस्म सोम में ज़ियामुद्दीन के अहल खाना अजीज़ व अक़ारिब इशरत हुसैन, क्रिकेट सादिक मोहम्मद खालिद अनम, चीफ CPLC ज़बरम हबीब और दीगर शरीक हुए। अब बात करेंगे डॉलर के हवाले से। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.96 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹265.38 पर बंद हुआ। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर ₹2.5 सस्ता हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रुपया तगड़ा और डॉलर रोज बरोज कमजोर होने लगा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.96 सस्ता हो गया। डॉलर ₹267.34 से गिरकर ₹265.38 पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.74% बेहतरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 8 कारोबारी रोज में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹11.20 सस्ता हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि बरामदात की मद में डॉलर की रकम मौसूल होने से रुपए पर दबाव कम हुआ है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹2.5 सस्ता होकर ₹268.50 तक गिर गया। ओपन मार्केट में यूरो ₹5.5 सस्ता होकर ₹83, बरतानी पाउंड ₹3 सस्ता होकर ₹322 का हो गया है। ओपन मार्केट में इमारती धर्म 70 पैसे कमी से ₹74.30 और सऊदी रियाल 90 पैसे सस्ता होकर ₹71.10 का हो गया है। कराची में द फ्यूचर समिट के 6ठे एडिशन का पहला रोज इख्तिताम पजीर हो गया। समिट में कॉरपोरेट और बैंकिंग समेत मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का कहना था कि मुल्क और माशी तरक्की के लिए दुरुस्त और बरवक्त फैसले ज़रूरी हैं। अबतर मुआशी सूरत हाल दुरुस्त और बरवक्त फैसलों के साथ साथ जामे पॉलिसी नागुज़ीर। कराची के निजी होटल में दी फ्यूचर समिट के पहले रोज बैंकिंग, कॉर्पोरेट समेत मुख्तलिफ मुल्की और बैनुल अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदों और माहिरीन ने शिरकत की। शुरा ने मौसमियाती तब्दीलियों और आलमी माशी चैलेंजेस के तनाजुर में पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात पर इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि मुल्क में फैसलों का फुकदान है। सियासी क़यादत को सोचना होगा कि मुल्क को किस जानिब ले जा रहे हैं। पाकिस्तान में रुपए की कदर गिरने, महंगाई, लोड शेडिंग और टैक्सों के बोझ से टेलीकॉम समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स को मुश्किलात दरपेश हैं। Energy, fuel prices, foreign currency constraints. You have some elements of deteriorating law and order situation, but again, it is not. This does not mean that there isn't really going to be a rosier future that we have to collectively build. के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मूनुस अलवी का कहना था कि के इलेक्ट्रिक बिजली के शोबे में मुकाबले के लिए तैयार है, जबकि नादरा चेयरमैन ने कहा कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। As के इलेक्ट्रिक, we have talked about it that they have to follow KE model, although we are still criticized in certain cases, but I would still claim that K Electric has not contributed anything towards the circular debt. It is again in the news today. Pakistan ranked 146th in EGDI, Electronic Government Development Index, and now I came back and we are back at 153. So we have to do these interventions so that out of 193 or 97 countries, मुकर्रीन का कहना था कि दौरे जदीद में हर सेक्टर में जदीद डिजिटलाइजेशन लाई जा रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए तिजारती सरगर्मियों को अस्तवार और चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए इकदाम करने होंगे। कैमरामैन गुलफाम के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और मैनेजमेंट कमेटी के अरकान ने मुलाकात की। कराची में PSL के मैचेस की कामयाबी के लिए तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। ये आज रात में मुलाकात हुई है गवर्नर हाउस में। PCB के चेयरमैन नजम सेठी और मैनेजमेंट कमेटी के अरकान यहाँ पे गवर्नर हाउस पहुँचे थे और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से इनकी एक तफसीली मुलाकात हुई है। यकीनन ये मुलाकात जो हुई है इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मसाइल तो नहीं देगा, लेकिन कराची में जो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो रहे हैं, इन्हीं मैचेस और क्रिकेट की फ़रोग़ और इनकी कामयाबी पे बात हुई है, जिस पे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने PCB के चेयरमैन को अपने मुकम्मल हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया है, जिस पे नजम सेठी ने गवर्नर सिंध का शुक्रिया भी अदा किया है। जी बहुत शुक्रिया आजिज़, आपने हमें अपडेट किया। कराची में वाक़े जापानी कौंसल खाने में जापानी कैलेंडर की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में मुनफरिद मसवरी के शाहकार फनपारों ने देखने वालों के दिल मोह लिए।
कराची में जापानी सकाफत के रंग छा गए। जापानी कौंसल खाने में सजी जापानी कैलेंडर्स और फन पारों की नुमाइश में 30 से जायद कैलेंडर्स, मुसव्वरी और अक्स बंदी के फन पारे पेश किए गए। जापानी कौंसल जनरल ओडागरी टोशियो ने कहा कि तकरीब कामयाब रही। And today we have only a small selection of them. However, we are happy to be able to introduce you what Japanese calendar is all about. And some calendars show the beauty of the Japanese sceneries, and some show the splendidness of the Japanese architecture, ranging from the Mount Fuji to Japanese gardens. नुमाइश में पाकिस्तानी तलबा भी शरीक हुए जो पाकिस्तानी सकाफत को देखकर दंग रह गए। तलबा ने जापानी सकाफत को दुनिया की बेहतरीन सकाफतों में से एक करार दिया। तकरीब में नापा के CEO जुनैद जुबैरी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की और जापानी आर्ट को सराहा। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 21।